Yes, good afternoon, everyone. Good afternoon, sir. Today's lecture, we will start with the program. So keep your copy pen also in the working mode. We'll just wait for a couple of minutes for more students to join in. So the first program is to find the area of a triangle. Clear. So first we will discuss how we find the area of a triangle, and then we will try to make the program for calculating the area of a triangle. Clear. So we have, I think, covered this program earlier also. So who will help me out in deciding this? Whiteboard. So everyone is requested to keep your camera in the working mode. So one by one you can participate in the discussion also. So as I have already stated that the first program we will focus on that is the area of a triangle. So anyone who can just brief me, tell the process how to calculate the area of a rectangle. Shriya has already said yes.
Anyone else who knows how to find out the area? Gurleen is saying yes. Muskan and anyone else? Bhavya has raised the hand. Ishan has also raised the hand. And so the turn goes to yes, Muskan 11F. So you have to explain me, that is आप बताओ कैसे होगा ये, or we find out the area of a triangle. So like I have already shown you on the screen, you can see one of the triangle is, so this is a right angle triangle. किसी भी शेप की हो सकती है ट्रायंगल. Yes, yes Muskan. So half into base into height is the formula of triangle. First we will input the base, height and half into that is a base into height. तो बेटा वो तो height. सिर्फ इसी ट्रायंगल के ऊपर चलेगा, राइट एंगल के ऊपर हाइट इनटू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. बाकी ट्रायंगल राइट ट्रायंगल ही बनाया ना, इसलिए यही फॉर्मूला बोला. वो तो मैंने इसलिए ले ली. यहाँ पे पेंट में मेरे को सबसे पहले यहाँ पे जो ट्रायंगल दिखाई दी वो राइट एंगल ही दिखाई दी, सो मैंने ये पिक कर लिया. सो लेट्स से आई ड्रा वन मोर ट्रायंगल. सो like let us say this triangle is there. Clear? अगर इस तरह की ट्रायंगल है तो then which formula we are going to apply? सर एक ये भी हो सकता है, अगर दूसरी वाली ट्रायंगल है तो एरिया इज इक्वल टू एस रूट एस ब्रैकेट एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ये भी हो सकता है फॉर्मूला. यस यस यस. पहले ए बी सी की वैल्यू इनपुट करेंगे. ठीक है ठीक है. एक्चुअली वो फार्मूला जो है दैट इज दैट इज द यूनिवर्सल फार्मूला ना, वो हर एक ट्रायंगल के ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा. ठीक है. Yes. So as suggested by Muskan, so we'll be applying the formula. ठीक है. इसके लिए जो हमारे पास फार्मूला लगेगा दैट इज हमने पहले भी किया था, S is equal to that is the sum of all the sides. जैसे ये इसको हम पॉइंट को ले लेते हैं, this is the point A we have, this is the point B on the triangle, and let's assume this is the point C. So this is side C, this is side B, and this is side A, and we get the A plus B plus C से क्या आ जाएगा हमारे पास? Yes anyone? Perimeter. So we will get the perimeter. और अगर हम इसको डिवाइडेड बाय S की वैल्यू होती है A plus B plus C by 2. So with this we actually get, हमें क्या मिलेगा, ये क्या होगा हमारे पास, half of the perimeter, या इसको हम सेमी पेरीमीटर भी बोल सकते हैं. So that is the सेमी पेरीमीटर we have. Clear? और बाद में फिर हम वो जो S का फार्मूला था that is sorry the formula for area is, इसको हम वही लिख लेते हैं, that is now we move to the Jupyter notebook. Clear? तो एक तो आ गया हमारे पास S is equal to A plus B plus C, and this should be divided by 2. तो ये सेमी पेरीमीटर भी है हमारे पास ये. और दूसरा फार्मूला है हमारे पास टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल, दैट इज इक्वल टू S into S minus A and S minus B, and the third one is S minus C. ठीक है, यही फार्मूला है. फिर और सारे का हमने बाद में क्या हमने निकालना होता है, अंडर रूट. तो इसका अंडर रूट निकालने के लिए क्या करेंगे हम इसके अंदर? यस एनीवन? 3 to power 1/2. फिर एक्सपोनेंशियल यूज करेंगे. एक्सपोनेंशियल यूज कर लो, या जैसे अगर मैं इसकी सारे की पावर जो है इसको ब्रैकेट में रख के
इस सारे की रेज टू पावर 1/2 करने के लिए 1/2 यू नो 1/2 इज इक्वल टू 0.5, तो ऐसे भी मैं निकाल सकता हूँ उसका अंडर रूट। ठीक है, यहाँ दूसरा है हमारे पास, यू कैन यूज दी पावर फंक्शन आल्सो। पावर फंक्शन में इस सारे को हम ले सकते हैं पहला पैरामीटर और इसको हम ले सकते हैं दूसरा पैरामीटर इन दी पावर फंक्शन। तो वट एवर द मेथड यू आर कंफर्टेबल, सो एनी ऑफ द मेथड यू कैन अप्लाई इन। So now we start working with this one. So yes, so now we move to the very first part, that is the inputting. So yes, Jasmine अपना कैमरा ऑन कर लो बेटा। जैस्मीन, प्रियंका, तरुणजोत, नवदीप सिंह। यस जैस्मीन, आप बताओ बेटा, इस प्रोग्राम में हमें इनपुट क्या करना पड़ेगा? व्हाट वी नीड टू इनपुट इन दिस प्रोग्राम? Sir, we need to input the sides. Yes, so we need to input the 3 sides, that is the side A, B, C. So moving back to this one, so let's say A is equal to, so float रख लेते हैं, float input enter A. Clear? So this is, we know that A stands for the first side, and then I just copy paste this one. We have the second side is B, and the third side is C. So this is, with this one the inputting is done. बाद में था हमारे पास to calculate S. So S we already know that is this, S is equal to, हमने यहाँ यहीं से कॉपी कर लेते हैं, S भी आ गया। फिर हमने कैलकुलेट करना है एरिया, so area is equal to, again the formula is ready here. Clear? And the next part is, yes, the next query goes to, yes, Tarunjot, ओ बड़ा कैमरा तो ऑन करो। मिस्टर स्टीफन, ओ स्टीफन बेटा आप भी करो अपना ये कैमरा ऑन करो। प्रियंका, so one by one I will be removing the students now, na, because those who will not keep their camera in the working mode, so I will remove one by one. Yes, Mr. Stephen. मेरी नेटवर्क प्रॉब्लम है। चलो ठीक है, ठीक है। यस स्टीफन, स्टीफन, तरुणजोत, मिस्टर गुरलीन। सर वर्क हो रहा है सर घर पे। और हाँ ठीक है, तू बस आराम कर, बस ठीक है, बंद नहीं कर। नहीं सर, कल या परसों तक ऑन हो जाएगा सर। म्यूट कर ले, म्यूट कर ले। यस, नेक्स्ट इज सक्षम। नवदीप सिंह, ये सारे चले गए हैं। यस मन्नत, मन्नत आप बताओ बेटा, नेक्स्ट स्टेप क्या है अब हमारे पास? व्हाट वी नीड टू डू नेक्स्ट? सब इनको प्रिंटेड यस, रन करना उसको। yes, so the last processing is completed here, so we have to print, and the area is whatever the area we are there. Here, so we will run this one. So we need to input the first triangle, side A, let's say 5, 6 and 7. These are the sides, and this is the area we get. अगर हमने इसकी प्रॉपर फॉर्मेटिंग करनी है तो व्हाट वी नीड टू डू? यस, यस अभिनंदन, अभिनंदन, तरुणजोत, प्रियंका, राजवीर सिंह,
Navdeep Singh. So next is yes भव्या आप बताओ. मींस अगर मैंने डेसिमल के बाद अपने नंबर ऑफ डिजिट्स को कंट्रोल करना है, सो इन द रिजल्ट वी हैव नंबर ऑफ डिजिट्स हियर. तो मैं चाहता हूं डेसिमल के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट्स डिस्प्ले हो वहां पे. सर शायद ट्रंकेट कुछ ऐसा. नहीं, ट्रंकेट नहीं है. ट्रंकेट तो MySQL का फंक्शन आ गया. ट्रंकेट पाइथन का फंक्शन, उसके लिए हमारे पास यस. सो वी हैव a huge class. So the question is transferred to yes Vanshika. Sir, I don't know. ठीक है. Yes Amarveer. So I'm not really sure whether it would work here, but the function of round can be used. Round area and then by comma round parenthesis the number which we want to round off, and then the number of digits to what we want to round off. ठीक है. Good one. And next is Romika. The same question. Shriya. Sir, I don't. Okay. Shriya. Sir, I was also going to say, speak the same answer which Amarveer has spoken right now. Okay. So you have a great unity among them. So next is that is the formatting के लिए हम use कर सकते हैं percentage. That is 0.2f. That is for floating point numbers. Clear? So I will run this one. 5, 6, and 7. So this has not worked here. Invalid syntax. तो ये formatting के Sir, लिए as we have found the area, we can write it print parenthesis round, and then we can again use the parenthesis and write area comma 2. parenthesis Area comma 2. चलो देखते हैं एक बार फिर से ट्राई करके. 5. तो ये फॉर्मेटिंग हमारी जो है वो नहीं चल रही. दैट इज क्लियर. तो कोई नहीं, इसको देख लेते हैं. दैट इज फॉर्मेटिंग इज आल्सो डन लाइक कैसे हम डेसिमल के बाद हमें कितने डिजिट चाहिए, सो दैट वी हैव टू डिसाइड हियर अपॉन. क्लियर. सो वी विल कीप दिस in the next. Sir, after comma you can use round function. आफ्टर कॉमा चलो कोई बात नहीं. ठीक है. ऐसे दैट इज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू राइट द अप्रोप्रिएट कोड हियर. ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, इसको कर लेंगे अभी हम. सो वी मूव टू द नेक्स्ट प्रोग्राम ऑफ द डे. दैट इज प्रोग्राम to check whether the number is prime or not. ठीक है. तो इसके अंदर भी कंट्रोल स्टेटमेंट्स और ये लूपिंग स्टेटमेंट्स, इसी का कंसेप्ट लगेगा. सो बिफोर वी गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ए प्राइम नंबर, सो फर्स्ट हु विल टेल मी द व्हाट इज ए प्राइम नंबर इज. यस हर्षिता. तो ये कहां से आ जाती है? सारे ग्रुप में कंस्ट्रक्शन लगी हुई है मेरे को लग रहा है. यस, the question goes to Harshita, and Harshita is I think not present here now. Yes, Navdeep Singh. Sir, I will on my camera within 2 minutes. I am sir coming to home. Okay. On the move. Yes, Mr. Saksham. ये जो बिना कैमरे वाले हैं, सो यस मिस्टर ईशान.
हेलो सर। हाँ ईशान आप बताओ व्हाट इज द प्राइम नंबर? प्राइम नंबर की प्रॉपर्टी क्या है? प्राइम नंबर सर होता है जो मतलब अपने आप से और 1 के अलावा किसी से डिविजिबल नहीं होता, जैसे नंबर 11 हो गया। ठीक है, so we take the prime number as the number that is divisible by itself and it is divisible by 1. तो 1 से तो सारे नंबर और अपने आप से सारे नंबर डिविजिबल हो जाते हैं. So other than that the number is not divisible by any other number. So that is the prime number. तो इसके लिए सबसे पहले स्टेप नंबर 1, यस महक नहीं मुस्कान है. मुस्कान 11F दी. हाँ यस आप बताओ बेटा. Yes, sir. हाँ तो इस प्रोग्राम में हमें इनपुट क्या करना पड़ेगा? What is the inputting we need here? So we have to input the number from the user by Yes. the user. So let's say we ask the user to input a number. So input, enter a number and enter a number like this. ठीक है, तो इनपुटिंग होगी. अब हमारा नेक्स्ट टास्क क्या है? दैट इज चेक करना है, दैट इज वेदर दिस नंबर इज, इसकी डिविजिबिलिटी चेक करनी है इस नंबर की. ठीक है, तो नाउ वी हैव नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर लाइंड अप टू आंसर. यस ईशान से पूछ लेते हैं. ईशान यू कंटिन्यू विद योर आंसर. यस नेक्स्ट स्टेप बता सकते हो क्या करेंगे हम? सर पहले इनपुट करने पर हम देखेंगे अगर जो नंबर है वो 1 के ऊपर है कि नहीं. उसके बाद हम फॉर लूप यूज करेंगे रेंज को 2 से लेकर नंबर तक, और उसको मॉड्यूलस के साथ देखेंगे कि अगर जो मॉड्यूलस 0 आ रहा है तो मतलब कि वो प्राइम है, अगर मॉड्यूलस 0 नहीं आ रहा तो मतलब वो प्राइम नहीं है. ठीक है. सो यू गॉट गिव द गुड आइडिया. क्लियर? तो एक लूप लगा लेते हैं. दैट इज बेसिकली लूप किस लिए है? टू चेक दी नंबर कि नंबर प्राइम है या नहीं है. सो फॉर we can start the loop from to variable I, that is a control variable. Okay, and in range function का यूज करेंगे. that is to जो नंबर था हमारे पास. ठीक है जी. एंड बाद में क्या है? इफ ये जो मॉडुलस डिवीजन इसने बताई है, दैट इज द नंबर इज डिवाइडेड बाय जो हमारी लूप है I से लेके I 1 तो नहीं है, 2 से शुरू होगी ये लूप. एंड इट विल बी चेक्ड विद 0. ठीक है जी. सो इफ इट इज डन, सो व्हाट वी से, अगर इक्वल टू 0 आ गया, सो द नंबर is not a prime number. ठीक है जी. और ठीक है जी, दूसरा आ जाएगा हमारे पास. दी सेकंड इज ऑप्शन इज else. Print and the number is here. So we will try to check this one out. So let's say the number is 407. So the दो बार लिखा आ रहा है, this is not a prime number, and 407 is not a prime number, and it is also written as the number is prime. Sir, indentation you have not done properly. Sir, else part. Basically तो move with 407 itself. The number is prime
ठीक है, एक तो हमें इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, एक ब्रेक स्टेटमेंट का यूज करना पड़ेगा कि जब भी हमारे पास नंबर इज, कैसे इसमें लगेगा, इज नॉट ए प्राइम नंबर, break. So let's say the number is 19. So this number is prime, but it remains in the loop. So if we have to make it outside the loop, so the number is prime. इसके अंदर क्या है हमारे पास, लॉजिक क्या है हमने जो लगाया हुआ है, दैट इज द लॉजिक इज, एक तो इंडेंटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ वी आर गोइंग टू मेक यूज ऑफ इंडेंटेशन। तो सबसे पहले क्या है इसके अंदर, वी नीड टू इनपुट ए नंबर, सो यहां तक तो इनपुटिंग होगी। दूसरा क्या है हमारे पास लॉजिक, कि हमने चेक करना है वो नंबर जो है वो 2 से लेके n-1, ठीक है, जो नंबर है उसके n-1 तक किसी भी नंबर से वो अगर डिवाइड हो गया, सो द नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर। क्लियर? और नंबर इज नॉट ए प्राइम नंबर है तो फिर तो हमें लूप फर्दर कंटिन्यू रखने की जरूरत नहीं है, वी विल ब्रेक दिस लूप। ठीक है, अगर नहीं है तो दिस लूप विल कंटिन्यू एंड कीप ऑन चेकिंग दिस लॉजिक। ठीक है जी, और एल्स वाला पार्ट तभी चलेगा, एक ही बार चलेगा अभी एल्स वाला पार्ट। ठीक है, एक बार फिर से अब कोई प्राइम नंबर, एक नॉन प्राइम नंबर चेक कर लेते हैं, दैट इज so the number is, let's say 20 ले लेते हैं, 20, so this 20 is not a prime number, और साथ में इसको ब्रेक कर देगा। ठीक है, जब भी वो नंबर इसके साथ डिवाइड हुआ, यहाँ पे नंबर आएगा, so नंबर इज नॉट ए प्राइम, वो मैसेज डिस्प्ले हुआ, और साथ में फिर हमने आगे लूप को कंटिन्यू नहीं रखना है। ठीक है, सो जैसे हम नेक्स्ट एक और नंबर देख लेते हैं, 21, so you run this one, so 21 is not a prime number। ठीक है, तो जो प्राइम नहीं है, जो डिवीजन होता जाएगा वो ऐसे यहाँ पे डिस्प्ले होता रहेगा, एंड लेट्स से वी इनपुट द सेम नंबर 407। ठीक है, सो 407 इज नॉट ए प्राइम नंबर। 407 प्राइम नंबर है या नहीं है? कोई और जो प्राइम नंबर हो, जैसे कोई प्राइम नंबर बताओ, 19 के बाद कौन सा प्राइम नंबर है? जैसे 29 है। क्लियर? सो 29 नंबर इज प्राइम नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो लूप है, हमने जो लूप लगाई है, दिस लूप विल कंटिन्यू, विल बी वर्किंग। तो अगर कंट्रोल इसमें से बाहर आ गया सक्सेसफुली, अगर ये वाली इफ स्टेटमेंट ट्रू नहीं हुई, तो एल्स पार्ट में आ जाएगा हमारे पास दैट नंबर इज प्राइम। जब ये सारी की सारी लूप चल जाएगी, उसके बाद ही ये मैसेज आएगा द नंबर इज प्राइम। यस श्री, आई वांट टू से समथिंग। Yes. Sir, in the for loop, should not we use num plus 1 because the upper value is not included? देखो इसमें बेसिकली लॉजिक क्या है कि जब भी हमने कोई नंबर लेने हैं, जैसे हमने लूप चलानी है 1 से लेके नम तक, तो नम से तो नम डिवाइड हो ही जाएगा, तो नम प्लस 1 तक क्यों चलानी है हमने तो बेसिकली लॉजिक चेक करना है कि अगर वो n+1 मींस, अगर हमारे पास, अगर हमने 29 को चेक करना है, तो हम 2 से लेके 28 तक लूप चलानी है हमें। 29 से तो वो डिवाइड हो ही जाएगा, सो व्हाई वी नीड टू टेस्ट 29? सर, पर प्राइम नंबर जो होता है वो सिर्फ 1 और उससे डिवाइड होता है, तो हमने 29 को तो कंसीडर करना ही है। बेटा आप मेरा लॉजिक समझो ना। देखो मैंने 29 को चेक करना है कि वेदर दिस इज प्राइम और नॉट, तो मैंने 2 से लेके उसको 28 से डिवाइड किया, तो मेरा वो नंबर डिवाइड नहीं हुआ, तो इट मींस दिस इज ए प्राइम नंबर। तो 29 को टेस्ट क्यों करना है हमें? यू आर गेटिंग और नॉट? यू आर गेटिंग? सो बेसिकली ये इसीलिए इसको n+1 हमने इंक्लूड नहीं किया। दैट्स ए गुड क्वेश्चन।
So Ishan wants to add something here. Yes, Ishan. सर आपने कोड में उसको एरर नहीं कैच किया स्टार्टिंग में। क्या सर कोड के स्टार्टिंग में आपने एरर नहीं कैच किया। एरर नहीं कैच किया? हाँ जी सर, वो आपने स्टार्टिंग में वो दिया नहीं, इफ नंबर इज ग्रेटर देन 1 तभी ये लूप होना चाहिए। हाँ वो ठीक है, मैं थोड़ा अभी उस पॉइंट को नहीं ऐड करना चाहता हूँ। दैट इज आई वांट टू कीप दिस प्रोग्राम एज मच एज सिंपल बिकॉज हमारी वी हैव अ वेरी डाइवर्स क्लास, तो उसको भी ऐड कर लेंगे। जैसे ये बोल रहा है कि दैट इज वी, अगर हम इस सारी लूप को भी कर सकते हैं, एक और कंडीशन लगा सकते हैं इसके ऊपर, इफ क्लियर, तो वो नम के ऊपर भी हम चेक लगा सकते हैं कि दैट इज जो भी नंबर हमने इनपुट किया वो 1 से बड़ा होना चाहिए। सो आई डोंट वांट टू बेसिकली, इसी में हमारी इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है, सो आई डोंट वांट टू बेसिकली ऐड एनी सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी हियर। ठीक है जी। तो ये दोनों जो प्रोग्राम है, दैट इज यू नो, प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि दैट इज सम पीपल आर गुड इन प्रोग्रामिंग, ठीक है, कईयों को थोड़ा एफर्ट करने की जरूरत है। सो दिस इज द टाइम टू पुट इन एफर्ट्स। ठीक है, अगर हमारा सिलेबस खत्म है तो प्रोग्रामिंग इज द एरिया दैट वी नीड टू स्ट्रेंथन एज मच एज वी कैन। ठीक है, तो हो सकता है किसी को क्लास में लगता है कि मेरे को प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, सम पीपल थिंक दैट दे नीड टू प्रैक्टिस अ बिट। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप अगर थोड़ा थोड़ा इसके साथ इन टच रहोगे, सो दैट विल बी दी एडेड पॉइंट भी है। और एटलीस्ट जिसकी प्रोग्रामिंग वीक है वो थोड़ी जरूर प्रैक्टिस करे, क्योंकि कोड के साथ हम तभी फेमिलियर होंगे अगर हम उस कोड को बार बार यूज करते हैं। अब देखो इंडेंटेशन की प्रॉब्लम मेरे को अभी भी कई बार इंडेंटेशन की प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो दैट इज इंडेंटेशन का चक्कर क्या है, क्योंकि मोस्ट ऑफ यू जितने बच्चे हैं मोस्टली आप लोग C++ पढ़ी हुई है आप लोगों ने, तो C++ में तो ये इंडेंटेशन वाला कोई मैकेनिज्म है ना ही जावा के अंदर है, बिकॉज दे यूज द करली ब्रैकेट्स। वो ब्लॉक बनाने के लिए क्या करते हैं, वो करली ब्रैकेट्स का यूज करते हैं। बट पाइथन के अंदर जो बिगेस्ट पॉइंट है दैट इज वी नीड टू टेक केयर ऑफ दिस इंडेंटेशन। और जो आप लोग एग्जाम में भी अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चंस, उसमें भी ये डिफिकल्टी आती है, दैट इज समटाइम्स वी आर नॉट केयरिंग ऑफ दिस पॉइंट। तो ये है कि क्लास में करना, तो ये है कि इसके अंदर जो है कि आप लोगों को खुद करके देखने पड़ेंगे ये सारे प्रोग्राम्स। यस, रिलेटेड इन प्रोग्राम्स के बारे में किसी का कोई और पॉइंट है, सो यू कैन ask anything related to these programs। और एक जो हमारा आज का टास्क रह गया दैट इज ऑफ फॉर्मेटिंग, कि हमने पहले प्रोग्राम किया था, तो वो टास्क के ऊपर फोकस रखा करो। कौन सा टास्क हमारा आज का पेंडिंग है, दैट इज अबाउट दिस, कि मैं चाहता हूं कि मेरे रिजल्ट में डेसिमल के बाद सिर्फ 2 डिजिट ही डिस्प्ले हो। आई डोंट वांट दिस ह्यूज नंबर ऑफ डिजिट्स टू बी डिस्प्लेड इन द रिजल्ट। तो उसके लिए हम बेसिकली फॉर्मेटिंग करते हैं पाइथन के अंदर। सो that is the task that we are left with। Yes, anyone wants to have? और बहुत सारे बच्चे जो हैं they are not keeping their cameras in the working mode, so I am a bit lenient, clear? So this leniency will go down as the classes are now डेली एक ही मैकेनिज्म के ऊपर हम काम नहीं करेंगे। एनी अदर पॉइंट रिलेटेड टू दिस वन? तो जो हमने 2 प्रोग्राम किए हैं, एटलीस्ट यू हैव टू प्रैक्टिस ऑन दीज प्रोग्राम्स। और देखो प्रोग्रामिंग के अंदर ये है कि कुछ भी कन्फाइनमेंट नहीं है कि ये सेट ऑफ प्रोग्राम्स हमारे हो गए हैं एंड दैट्स ऑल। हर प्रोग्राम के अंदर सीखने के लिए कुछ है। So now we have to as हमारा लेवल इंक्रीज हो रहा है कि आपको लग रहा है कि ये हमारे लिए बेसिक प्रोग्राम है, so you can escalate the ladder। ठीक है, इसमें ये नहीं है कि ये प्रोग्राम खत्म हो गया तो पाइथन खत्म होगी। So we have just gone through the programs which are mentioned in the syllabus। ठीक है, तो वही अभी हमने मोटे मोटे प्रोग्राम किए हैं। उसके बाद there are number of programs are there where we can improve our programming skills। सर अगर हम फ्लोट डिवीजन लगाए तो फिर क्या? अगर हम फ्लोट डिवीजन लगाए तो फिर
फ्लोट डिवीजन कहाँ पे लगानी है? So I didn't get your question. अगर किसी को समझ आया तो someone can propagate the question also. सर जो वैल्यू है आखिरी में उसको फ्लोट डिवीजन लगा के 1 से कर देते हैं, फिर सर वैल्यू लिमिटेड ही आएगी। हाँ, कोई भी फंक्शन लगा सकते हैं, ऐसा नहीं है, बट द बेस्ट वे इज द फॉर्मेटिंग मेथड। फॉर्मेटिंग मेथड के ऊपर ही हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, बिकॉज फॉर्मेटिंग मेथड से ही हम कंट्रोल करते हैं कि हमने कितने नंबर ऑफ डिजिट्स को डिस्प्ले करवाना है। सो व्हाई वी नीड टू मेक यूज ऑफ सम अदर फंक्शन। ठीक है, वैसे अगर आप जैसे भी इस आंसर को सेट कर सकते हैं, दैट्स अनदर इशू दैट नेक्स्ट वी विल डिस्कस ऑन दिस पॉइंट आल्सो। So this is my request to everyone, that is keep on working on the programming side. ठीक है, और बहुत सारे बच्चे हैं जो those who are I will not name any student, but many of the students are weak in programming side. तो ये ना लेके चलो कि हमारा सिलेबस खत्म हो गया है और we need to relax now. तो अभी बहुत सारा काम है, बहुत सारे बच्चों की प्रैक्टिस नहीं की हुई आप लोगों ने, और may not be very गुड इन प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग में ये है कि आप कम से कम ये कोड के साथ तो जितना फेमिलियर हो सकते हो इस टाइम में, ठीक है, आपके पास से रिसोर्सेज हैं, ऑल दी रिसोर्सेज यू हैव गॉट, तो थोड़ी सी आप प्रैक्टिस करो इसमें, और जितना भी आप अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो, सो ट्राई टू इम्प्रूव देम। क्लियर? सो टुमारो वी विल आल्सो अगेन ब्रिंग अप सम मोर प्रॉब्लम्स इन द पाइथन एंड वी विल ट्राई टू सॉर्ट आउट दोस प्रॉब्लम्स इन द क्लास। ठीक है, स्टिल एट द एंड अगर किसी का कोई क्वेरी है, रिलेटेड क्वेरी है कोई भी, so you can ask. Yes. So I think this is the time that everyone is in the all clear mode. So thank you, beta. So I will bring up more programs in the coming lecture and we will discuss them in the next lecture. Thank you, everyone. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. थैंक यू सर। Thank you.